In this lecture, we are going to learn about the meaning of federalism and what do you mean by federal structure, its key features, and the countries which are following the federal system or the federal form of government. So, this lecture is prepared by me. My name is Ashish Singh, and let's start with this chapter. Let us first understand what is federalism. Basically, federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and the various constituent units of the country. Usually, a federation has two levels of government. One is the government for the entire country, and that is usually responsible for a few subjects of common national interest. The other are governments at the local or level of provinces or states that look after much of the day-to-day administering of their state. Both this level of the government enjoy their power independently ऑफ द अदर. सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि फेडरलिज्म होता क्या है. फेडरलिज्म एक तरीके की गवर्नमेंट होती है जहां पे पावर इज शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. कई सारी कंट्रीज़ के अंदर स्टेट गवर्नमेंट होती है, कई सारी कंट्री के अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है या प्रोविंस के हिसाब से होती है. टेकिंग एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान, इंडिया के अंदर वी हैव स्टेट गवर्नमेंट. सो फेडरलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द central government, that is also called as union government, or the state government, and both the set of government they have special powers, special subjects on which they can make their rules and regulations. For taking example, we have in the union government will make the laws for the national issues, and the state government will make the laws for the state subjects. And moreover, there are also regional, or we can say the local governments also available. More importantly, both the level of government, if we talk about the union government or if we talk about the state government, both enjoy their own power independent टू ईच अदर. तो इसको समझने से पहले हम लोग समझेंगे फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम. फेडरल सिस्टम मैंने आपको बता दिया कि पावर्स कंट्री की जो होती हैं वो यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में होती है. मोस्टली टू या फिर 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होती है. यूनिटरी सिस्टम का मतलब होता है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल द पावर्स आर कंसंट्रेटेड और कंसोलिडेटेड इन अ सिंगल हैंड. सिर्फ एक सिंगल गवर्नमेंट, दैट मीन्स जो कंट्री की एक सिंगल गवर्नमेंट होगी, जो नेशनल गवर्नमेंट होगी, ठीक है, जो मेन गवर्नमेंट होगी या यूनियन गवर्नमेंट होगी, उसी के हाथ में सारी पावर्स होंगी और उसके अलावा किसी और भी स्टेट या प्रोविंस में कोई भी सरकार नहीं होगी और या फिर वहाँ पे कोई भी पावर उनके पास अवेलेबल नहीं होगी. अब इसके बाद मैं आपको डिफरेंस बताना चाहूँगा कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है. यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर वी हैव ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एंड in the federal form of government we have two level of government. Mostly in unitary form of government we have single citizenship, and in the federal form of government we have dual citizenship. And more importantly, in the unitary form of government, the subunits which are working under the central government or which are working under the one level of government, they cannot operate independently. But on the other hand, if we talk about the federal form of government, where the subunits working under the central government or the union government, they can work according to their own choice and independently, but they are answerable to the central government as well as. In the unitary form we have no division of power, but in the federal form of government we have division of power. Now we will talk about the centralization of power, that all the centralization, that means all the major powers are being consolidated in a single level of government, that is unitary form. But in the federal structure, decentralization this is really very important word. Decentralization, it means the power are being divided into different arenas like the union government, the state government and the local government. So powers को वहाँ पे अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है, यूनियन गवर्नमेंट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर. सबसे इंपॉर्टेंट बात यही रखनी है कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर पावर्स डिवाइड नहीं होती, लेकिन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर पावर्स डिवाइड होती है. दिस इज द वर्ल्ड मैप, and the countries which are in the green color, they follow the federal structure. That means these are the country which follows more than one level of government. They have 2-tier or 3-tier structure. They follow the federal structure where the powers are being divided among the union government, the state government or the provincial government and the local government, as well as where decentralization is present and practiced, like USA, Mexico. You can see here that Canada, ठीक है, we have Mexico or US, Mexico, Australia, India, Pakistan, ठीक है. These are the countries which there are total 193 countries in the world, and approximately the people who are living in the federal structure of the total population is 40% of the world population, and major countries are following this type of system, that is the federal structure. And what are the key features of federalism? First, very important that the federal structure has 2 or more level of government, and more importantly that the central government as well as the or we can call the union government and the state government, both are governing the same citizen. That both the citizens, that the same citizen are governed under the 2 sets of government. Other important thing is that
each tier has its own jurisdiction. That means the union government has a specific matter, they have specific subject on which they can make laws and they can work for the benefit of the country. The state government, they have their own specific subjects on which they can make rules and regulations, but both of the government will work according to the will and the power given by the constitution itself. More importantly, all the authorities, all the jurisdiction, administrative, executive authorities by the union government, the state government, from where they derive their power? They derive their power from the constitution itself. And the existence and the authority of each tier of government is constitutionally guaranteed. That the constitution guarantee the existence or the entity of the union government as well as the state government. And more importantly, in the federal structure, we have rigid form of constitution. That means that the constitution cannot be easily changed. It requires a process. If you want to make a change or amendment in the constitution, it probably requires a method, a pure process, a procedure, which is that the union government, the state governments, they are to be consulted before making any change in the constitution. So that means in a country, in a federal structure country, the constitution is the supreme law of the land. The constitution is the supreme law. Nothing is above the constitution. No government, whether they are state government, union government, or the local government, they are above the constitution or the supreme law of the land. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन की दो चीज़ होती है. कॉन्स्टिट्यूशन का एक होता है गार्जियन, एक होता है कस्टोडियन. ठीक है. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, कॉन्स्टिट्यूशन की गारंटी कौन, कॉन्स्टिट्यूशन अगर कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी देता है तो उसका गारंटर कौन है? देखिए, ज्यूरिसडिक्शन जो जुडिशरी होती है, ठीक है, वो इसका गारंटर होता है. वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेट करने की ताकत रखता है, कॉन्स्टिट्यूशन को बताने की ताकत रखता है और कॉन्स्टिट्यूशन को लोगों तक पहुंचाने की ताकत रखता है. इवन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका एक होता है गार्जियन. ठीक है, गार्जियन. ठीक है. तो और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, गार्जियन कौन है? आपका ज्यूरिसडिक्शन. ठीक है, जुडिशरी. और कस्टोडियन किसकी कस्टडी में रहता है? प्रेसिडेंट की कस्टडी में रहता है. अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर बना है, ये फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर जो डिफरेंट कंट्रीज फॉलो करती है, वो लगभग ऐसा नहीं होता कि हर कंट्री के अंदर सेम तरीके का फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करा जाता है. वी हैव बेसिकली टू टाइप्स ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर, दैट इज कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म एंड द होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म. सबसे पहले हम लोग समझेंगे कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म के बारे में. कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म के बारे में क्या होता है कि जब इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो होती हैं वो मिलती हैं, दैट मीन्स एक कंट्री है, एक कंट्री बनी और उस कंट्री की सारी स्टेट्स आपस में मिलके एक सिंगल यूनिट बनाना चाहती है, उसको कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म. साथ ही साथ why they do so, that is they try to increase their security by pooling sovereignty and retaining identity. They wanted to pool their sovereignty, unity, integrity, public peace, public order, security of the country, security of the state. And more importantly, in the coming together federalism, all the constituent federations, the federation which have come together to form a single unit, they have equal powers. The countries which are following this type of system is USA, Switzerland, Australia. They are following coming together federation. On the other hand, if you talk about the holding together federation, holding together is the federation where the state divides its power into the constituent state or the member. That means in the coming to, holding together federation, we have the national government as well as we have the state government, and the national government divide the power among the state government. And more importantly, why they do so? They do so for pooling sovereignty and returning identity same. In fact, in this federation, the central government subordinate over the constituent units. That means if we talk about that in the holding together federation, the central government has more authority, has more power as compared to the state government or the sub-constituents. More importantly, in this holding together federation, all the state or all the subunits, they don't have equal power. Some states have special power according to the privileges mentioned in the constitution. I will give you an example that Jammu and Kashmir is a state of India and Jammu Kashmir has special privileges. आपको एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो वहाँ पर ये होता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर के लोगों के पास डुअल सिटीजनशिप होती है. उनके पास एक जम्मू कश्मीर की सिटीजनशिप होती है और एक इंडिया की सिटीजनशिप होती है. लेकिन बाकी स्टेट्स के लोगों के पास सिर्फ एक ही सिंगल सिटीजनशिप होती है. ठीक है, अगर कोई बंदा यूपी का है तो उसके पास सिर्फ इंडिया की सिटीजनशिप होगी. लेकिन जम्मू कश्मीर के पास जो है वो जम्मू कश्मीर की सिटीजनशिप भी होगी और इंडिया की सिटीजनशिप भी होगी उसके पास. मोर इम्पॉर्टेंटली, हम वहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकते,
ठीक है, वहाँ की गवर्नमेंट जॉब्स में जो जम्मू कश्मीर के, वहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए प्रिविलेजेस हैं, रिजर्वेशंस हैं, लेकिन ये सब चीज़ें अब ख़त्म कर दी गई हैं बिकॉज द स्पेशल आर्टिकल दैट इज़ आर्टिकल 370 हैज़ बिन रिवोक्ड और एब्रोगेटेड, ठीक है, बाय दिस सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2019 ऑन 31 अक्टूबर। सो उस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया है। सो ये सिस्टम कौन कौन फॉलो करता है? इंडिया फॉलो करता है, स्पेन, बेल्जियम का एग्जांपल आप लोगों ने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था। बेल्जियम के अंदर किस तरीके से बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार रिवाइज करके लगभग 93 तक उसको अकोमोडेट करा गया था, जहाँ पे पावर्स वर डिवाइडेड अमंग बिटवीन द कंट्री दैट इज़ द बेल्जियम एंड द कैपिटल इटसेल्फ ब्रुसेल, एंड वहाँ पे लोकल एक कम्युनिटी लेवल की गवर्नमेंट भी बनाई गई थी। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। अब इंडिया को फेडरल स्ट्रक्चर, व्हाट मेक्स एन इंडिया फेडरल स्ट्रक्चर? इंडिया फॉलोज फेडरलिज्म, दैट्स ओके, राइट? इंडिया, इन इंडिया वी हैव 2 tier of government or 3 tier of government. So what makes India federal government? See, every government, that is whether it is a union government or the state government, they have their specific subjects. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वी हैव 3 लिस्ट, precisely we have 3 list, that is union list, state list and the concurrent list. Union list consists of the subject of the national importance, and the union government can only make laws on that, like defense, banking, currency, foreign affairs and communication, etc. The state list, the state consists of those subjects which are important to the state importance as well as for the local importance, and only the state government can make laws on it. Like taking example, police, trade, commerce, agriculture, irrigation, etc. Only on these specific subjects, only this specific subject the state government can make laws. And if we talk about the concurrent list is a list which consists of the common interest of both the central government and the state government. That means concurrent list एक ऐसी लिस्ट होती है जहाँ पर ऐसे सब्जेक्ट्स मेंशन होते हैं जो कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए कॉमन होते हैं, एंड बोथ हैव द पावर टू मेक लॉज ऑन इट, बोथ। बट अगर आप कहते हैं कि सर अगर डिस्प्यूट हो गया, दैट मीन्स एक पर्टिकुलर, मैं कहता हूँ कि एजुकेशन के ऊपर एक कोई लॉ बनाया जा रहा है जहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट कुछ और बात कह रही है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ और बात कह रही है, तो किसकी बात मानी जाएगी? इसमें जो प्रेफरेंस दी जाती है वो यूनियन गवर्नमेंट को दी जाती है। दैट मीन्स यूनियन गवर्नमेंट हैज़ मोर पावर एज कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट इन द कॉन्करेंट लिस्ट। कैसे क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं यहाँ पे? एजुकेशन, फॉरेस्ट आता है, ट्रेड, यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन। इसके अलावा वी हैव रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स ऑल्सो। देखिए, इंडिया तो 1947 में आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के वक्त जो सब्जेक्ट्स थे वो मेंशन करेगा, लेकिन आज़ादी के बाद जब कुछ चीज़ें नहीं बनी तो नए सब्जेक्ट्स भी आए। जैसे मैं कह सकता हूँ सॉफ्टवेयर आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई, इन सबको हमने रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स में रखा। रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स जो लिस्ट है ये भी यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आती है, एंड यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द राइट टू मेक लॉज अकॉर्डिंग टू द रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स। तो इसका मतलब है यूनियन गवर्नमेंट एक तो यूनियन लिस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट बना सकता है और रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग भी वो लॉज बना सकता है। सो दिस इज हाउ इंडिया बिकम्स अ फेडरल कंट्री वेयर ऑल द सब्जेक्ट्स आर बीन डिवाइडेड अमंग द यूनियन गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट एज वेल एज द रेसिड्यूरी लिस्ट, एंड ईच unit has its own jurisdiction over making the laws mentioned in the particular list of that level of government. अब आगे हम बात करेंगे यहाँ पर what about union territories? You know that India we have states as well as union territories. So more importantly that मैं आपको बताता हूँ जितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, वी हैव समवेयर अराउंड 7 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। सो उसमें से 2 यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी की। ज़्यादातर जितनी भी स्टेट्स होती हैं, देखिए जैसे who is the head of the country? The head of the country, or we can say the head of the state. The head of the state is president. Similar type हर स्टेट में गवर्नर होता है, हर स्टेट में गवर्नर होता है। जैसे पूरी कंट्री का प्रेसिडेंट होता है, ऐसे हर स्टेट का एक गवर्नर होता है। अब यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं, तो यूनियन टेरिटरीज को डायरेक्टली यूनियन टेरिटरीज को कौन मैनेज करता है? हु रेगुलेट्स देयर एक्सरसाइज, हु मेक लॉस फॉर द यूनियन टेरिटरीज, हु administer the day-to-day working of the union territory? The central government. How? The central government appoints lieutenant governor in union territories except 2. सिर्फ 2 को हम छोड़ देंगे। वो 2 कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं? एक दिल्ली और पुडुचेरी, क्योंकि सारी यूनियन टेरिटरीज के अंदर कह सकते हैं लेजिस्लेचर नहीं है। दैट मीन्स चीफ मिनिस्टर्स नहीं होते वहाँ पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं होते वहाँ पे, एक गवर्नमेंट नहीं होती, स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन पुडुचेरी के अंदर, जैसे आप दिल्ली में देखेंगे अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार है, पुडुचेरी के अंदर अगर आप देखेंगे ये दोनों जगह ऐसी हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली भी मौजूद है लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ। लेकिन बाकी जगहों पर, बाकी यूनियन टेरिटरीज के अंदर लाइक दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, यहाँ पर सब जगह लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट करे जाते हैं और वो वहाँ की वर्किंग को हैंड आउट करते हैं। अब मोर इम्पॉर्टेंटली जो ये पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है इंडिया में, दैट मीन्स द पावर डिवाइडेड बिटवीन द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट, दैट मीन्स द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, क्या इनमें चेंजेस कर सकते हैं?
यस कर सकते हैं. एंड हु हैज़ द अथॉरिटी इन दिस केस? द पार्लियामेंट हैज़ द अथॉरिटी एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स. दैट मीन्स जो स्टेट की गवर्नमेंट्स होती है उनके पास. अगर पार्लियामेंट चाहता है कि इस पावर स्ट्रक्चर में या पावर शेयरिंग में कोई चेंजेस करे जाए तो वो अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती. फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को बोथ द पार्लियामेंट, दैट मीन्स पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज जो हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वहाँ से एक अमेंडमेंट या लॉ को पास कराना होगा एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी से. 2/3, इसको कई बार स्पेशल मेजोरिटी भी कहा जाता है. 2/3 मेजोरिटी से पास कराया जाएगा और उसके बाद जितनी भी स्टेट्स हैं वो उस लॉ को रेटिफाई करेंगी. एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स को रेटिफाई करना ज़रूरी होता है, तभी किसी पावर में चेंजेस ला सकते हैं. तो इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये हो गया कि इफ़ we want to make a change in the power sharing structure of the country, then both the houses of the parliament, they have to pass the law at least 2/3 of the majority, and as well as all the states at least 50%, or we can say at least half of these total states have to rectify that law. Then only the change can be made in the power sharing structure of the country. So this is really very important. अब ये मैं आपके सामने इंडिया का एक मैप है आपके सामने. सबसे पहली बात, जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो वो 1947 में आज़ाद हुआ था, आप जानते हैं. तो उस समय पाकिस्तान दो थे, एक वेस्ट पाकिस्तान, एक ईस्ट पाकिस्तान. ठीक है, ये ईस्ट पाकिस्तान 1971 की जब वॉर हुई थी हमारी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो यहाँ पे ये बांग्लादेश करार हुआ था. शेख मुजीबुर रहमान इज नोन एज द फाउंडर और द फादर ऑफ बांग्लादेश. द कैपिटल इज ढाका, द करेंसी इज टाका. एंड दिस इज वेस्ट पाकिस्तान. मोहम्मद अली जिन्ना इज नोन एज द फाउंडर ऑफ वेस्ट पाकिस्तान. एंड दिस इज इंडिया. दिस इज़ इंडिया. सो 1947 में इस तरीके से हमारी कंट्री को डिवाइड करा गया था और पूरी कंट्री हमारी ऐसे बनी. और यहाँ पर हमारी नेबरिंग है. दिस इज़ चाइना, दिस इज़ अफगानिस्तान, द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच प्रोड्यूस द मैक्सिमम ओपियम इन द वर्ल्ड. दिस इज़ श्रीलंका, इसका पूरा नाम सीलोन है, 1948 में इंडिया से हुआ. दिस इज़ बर्मा, ओल्ड नेम इज़ म्यांमार. ठीक है, दिस इज़ चाइना, दिस इज़ भूटान, दिस इज़ नेपाल. दीज आर द नेबरिंग कंट्रीज. अब इसके बाद मैं आई एम गोइंग टू टेल यू स्टोरी बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स. व्हाट डू यू मीन बाय लिंग्विस्टिक स्टेट? द वर्ड इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट डू यू मीन बाय linguistic state? Linguistic state means that in our country we have different state, and if you go to Gujarat there will be the people who will speak Gujarati. If I go to Bihar there will be the people who speak Bihari. In Madhya Pradesh we have a different language. In Maharashtra we have Marathi. In Gujarat we have Gujarati. In Odisha we have Odia. That डिफरेंट लैंग्वेजेस. तो हमारी स्टेट, हमारी कंट्री के अंदर क्या है कि जो लैंग्वेज है किस तरीके से स्टेट्स बनाए गए थे. ये मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि किस तरीके से हमारी कंट्री के अंदर स्टेट्स बनाए गए थे. सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जब हमारी कंट्री आज़ाद हुई तो हमारी कंट्री जो आज के टाइम पे हमको यहाँ पर ये जो 28 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज दिखाई देती हैं, ये पहले ऐसे नहीं थी. पहले बड़ी बड़ी स्टेट्स थी. ठीक है, पहले प्रिंसली स्टेट्स भी थी. प्रिंसली स्टेट्स का मतलब हो गया राजे रजवाड़े. लगभग जब भारत आज़ाद हुआ था तो 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, राजे रजवाड़े, जिनको प्रिंसेस, जैसे मैसूर हो गया, ठीक है, हैदराबाद हो गया, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है, राजा हरी सिंह ऑफ जम्मू कश्मीर, ये सारे जो लोग थे ये प्रिंसली स्टेट्स के अंडर आते थे. अब हुआ क्या, जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, उन्होंने सोचा कि स्टेट्स को किस तरीके से डिवाइड करा जाएगा, स्टेट्स को किस बेसिस पे बनाया जाएगा. तो सबने सोचा लैंग्वेज के बेसिस, क्योंकि इंडिया में आप जानते हो कि दुनिया की सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, दुनिया के सबसे ज़्यादा रिलीजन यहाँ पे फॉलो करे जाते हैं, डायलेक्ट्स बहुत है हमारे पास, बिलीफ्स, एथिक्स, डाइवर्सिटी बहुत है. ठीक है, अब उन्होंने सोचा कि अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स को डिवाइड करेंगे, गुजरात में रहने वाले गुजराती, बिहार में रहने वाले बिहारी, तो इस तरीके से कहीं हमारी कंट्री की यूनिटी, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी और स्टेट सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर और पब्लिक पीस खराब ना हो जाए. दैट मीन्स वो डेंजर में ना आ जाए. सो व्हाट दे वर इन अ स्टेट ऑफ एप्रीहेंशन फर्स्ट, बट समहाउ दे अग्रीड टू मेक the states on the basis of the language policy. That means on the basis of language के बेसिस पे बनाया गया. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि राजस्थान के अंदर राजस्थानी बोली जाती है तो इसलिए राजस्थान वर्ड आया. ठीक है, गुजरात के अंदर गुजराती, बिहार के अंदर बिहारी, ठीक है, उड़ीसा के अंदर उड़िया, महाराष्ट्र के अंदर मराठी, तेलुगु, तमिल. ठीक है, ये इस तरीके से लैंग्वेजेस के बेसिस पे स्टेट्स को बनाया गया. इज़ दैट क्लियर? कैसे लैंग्वेजेस के बेसिस पे स्टेट्स को बनाया गया. इवन आप देखते हैं, इवन नहीं, सिर्फ मैं आपको ये नहीं कह सकता कि लैंग्वेजेस के बेस पे स्टेट्स को बनाया गया, ज्योग्राफी के हिसाब से भी बनाया गया, एथनिसिटी के हिसाब से भी बनाया गया, आगे आगे चल के. लेकिन पहले जो सबसे पहला क्राइटेरिया था वो लैंग्वेज क्राइटेरिया ही था. उसके बाद ज्योग्राफी के हिसाब से बनाया है, एथनिसिटी के हिसाब से बनाया, ट्राइब्स के हिसाब से बनाया, बाउंड्रीज के हिसाब से बनाया, वो चीज़ें भी हम देखेंगे. सबसे पहली बात करते हैं लैंग्वेज पॉलिसी इंडिया की. इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी क्या है? व्हाट इज़ द लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया? सी, वी डोंट हैव एनी नेशनल लैंग्वेज. Listen very carefully, we don't have any national language, we just have only
इंग्लिश एंड हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज। 1965 में ये हुआ था कि इंग्लिश जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज थी उसको बंद करने की डिमांड उठी थी। लेकिन लेट मी टेल यू, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, द 40% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया स्पीक्स हिंदी, 40%, एंड द रेस्ट स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। सो जो साउथ इंडिया की स्टेट्स थी, दे वर अगेंस्ट द imposition of Hindi language. They wanted to have English language. And the northern state, they were against the English language and they wanted to have Hindi language. That is the reason that India has an official language that is Hindi and English. इसके अलावा भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इफ यू टॉक अबाउट, वी हैव 22 स्केड्यूल लैंग्वेजेस, 22 स्केड्यूल लैंग्वेजेस। ये लैंग्वेजेस मैंने आपके सामने लिखी हैं सारी, ठीक है। उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तेलुगु, तमिल, सिंधी, कश्मीरी, कन्नड़, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, मैथिली, डोगरी, संथाली, बोडो, उर्दू। हर स्टेट, मैं आपको बताता हूँ, हर स्टेट की अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो हिंदी है, उर्दू है। आप उत्तराखंड की बात करेंगे तो वहाँ पे हिंदी है। तो ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं। हर स्टेट अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज रख सकता है, लेकिन पूरी कंट्री की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी और इंग्लिश ही है। नेशनल लैंग्वेज हमारी कोई नहीं है। स्टेट अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज क्यों रखता है? क्योंकि वो अपनी डे टू डे वर्किंग में, अपनी गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में, अपनी मैनेजमेंट में वो उस लैंग्वेज का यूज़ कर सकता है। इवन आप देखेंगे कि जितने गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होते हैं, उस गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर कोई भी इंसान इस 22 स्केड्यूल लैंग्वेजेस में पेपर को देना चाहता है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि जब यूपीएससी का एग्जामिनेशन होता है तो वहाँ पे कैंडिडेट को चॉइस दी जाती है कि आप अपने जिस रीजनल ब्लॉक को बिलोंग करते हैं, इफ आप सपोज करो एक बच्चा है कि वो मलयालम में एग्जाम देना चाहता है तो वो मलयालम में ऑप्ट कर सकता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया, दैट इज वी हैव टोटल 22 स्केड्यूल लैंग्वेजेस। अब इसके बाद बात करते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशंस की, कि सेंट्रल और स्टेट्स के बीच में किस तरीके से रिलेशन होता है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर सपोजिंगली मैं अभी कहता हूँ आपको, मैं आपको एक प्रेजेंट सिनेरियो बताता हूँ कि राइट नाउ वी हैव द बीजेपी गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड इन द यूपी वी हैव ऑल्सो बीजेपी गवर्नमेंट। सो बोथ आर लाइक गवर्नमेंट्स, सो बोथ विल वर्क with mutual cooperation and with benefits. So they will not go into state of dispute with each other because both are same government. Birds of the same feather flock together. But supposingly if I talk about कि यहाँ पर अगर supposingly कोई और गवर्नमेंट होती यूपी में और स्टेट में सेंट्रल में कोई और गवर्नमेंट होती तो दोनों के बीच में टसल हो सकती थी, दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो सकते थे, वर्किंग डिस्प्यूट्स हो सकते थे, किसी किसी बातों को इशू होकर ले सकते थे। वही चीज़ हम पढ़ते हैं कि सेंट्रल स्टेट्स के रिलेशन किस तरीके से हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ वर्ड्स के बारे में बताना चाहूँगा। लेट मी टेल यू वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड, दैट इज कोएलिशन गवर्नमेंट। व्हाट डू मीन बाय कोएलिशन गवर्नमेंट? इंडिया में कोएलिशन का दौर जो 90s में था, 90s के बाद coalition is basically a form of government when after the election there is no clear majority. That means none of the party or any of the party has a clear majority, then 2 or 3 parties combine together to form a majority and to showcase their majority on the floor of the house, that is in the parliament, and they make law. That means no single party has the majority of votes. That is why 2 or 3 parties combine together to form a single government. That is known as coalition government. This is known as coalition government. अब इसके बाद डिसमिसिंग ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में क्या होता है? कई बार ऐसा देखा गया था कि 1960s, 70s, 80s के अंदर देखा गया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, बिकॉज वी नो दैट इन इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द राइट टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट। तो कई बार ये देखा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पावर्स का मिसयूज करके स्टेट गवर्नमेंट को क्या कर दिया? डिसमिस कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। क्योंकि आप जानते हैं कि लोकसभा भी डिसॉल्व हो सकता है और लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी डिसॉल्व हो सकती हैं। तो एक तरीके से ये एक बेनिफिट ऑफ डाउट का फ़ायदा उठाया, या फिर इसको कहते हैं पावर शोकेसिंग, ब्रांडिशिंग ऑफ पावर की बात हो गई यहाँ पे। अलायंसेस की बात होती है। देखिए अलायंस का मतलब होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारी कंट्री में मेजर 2 अलायंस है, NDA और UPA। ये NDA क्या है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, बीजेपी गवर्नमेंट इसको लीड करती है। UPA क्या है? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, इसको कौन लीड करती है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एस्टैब्लिश इन 1885। दैट इज दिस इज लेड बाय BJP, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। अर्लियर इट यूज्ड टू बी नोन एज जनसंघ, फॉर्म्ड इन 1951 बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी एंड ऑल अदर प्रोमिनेंट लीडर्स। सो यहाँ पर ये चीज़ है कि अलायंसेस का मतलब होता है कि कई सारी पार्टीज इलेक्शन से पहले एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके एक कॉमन मैनिफेस्टो और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जनरेट करती है, ताकि वो सब एक साथ मिलकर एक सिंगल फ्रंट बना लें और वो फ्रंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे, ताकि इलेक्शन जीतने के बाद उनको किसी सरकार के कोलिशन में ना आना पड़े और वो अपनी खुद की सरकार अपनी पार्टीज़ की हेल्प से, जो डिफरेंट पार्टीज़ का सेग्रीगेशन उनके साथ है, दे कैन मेक गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू देम। अब आई हैव 2 कार्टून्स फॉर यू।
In this first cartoon, you can see that this is Indira Gandhi, the former Prime Minister of India, and these are all the states, how the states are hungry and they're asking for the power from the central government. That is the power of these states, that the power has been divided among the states, because in India, you know that all the states do not have equal power. Some states enjoy special privileges according to the Indian Constitution, that is Article 370, Article 371. And here you can see Atal Bihari Vajpayee sitting on the throne of the biggest position on the country, that is on the prime minister seat. That is, he's showing the coalition government, and all the constituent members, you can see here, they are helping him out. That means they are supporting him, they are giving their support to BJP or Atal Bihari Vajpayee. And this is how the coalition government works. That means the prime minister has different constituents from different parties, that means different parties are supporting them. अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात करते हैं। स्टार्टिंग में जो ये डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात ये इंपॉर्टेंट वर्ड के बारे में आप ध्यान रखिएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स व्हेन द पावर्स आर टेकन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर बीन गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इंडिया में ये जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था ये 1993 में हुआ था। तो इसका मतलब है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था और जब हमारी कंट्री थी, देन at that time we only had two tiers of government, that is the union government or the central government or the state government, the next is state government. लेकिन उस समय भी थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट हुआ करती थी, लेकिन वो बहुत रेगुलर नहीं हुआ करती थी। कई बार ऐसा होता है इलेक्शंस नहीं होते थे, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं था, कोई कंपलसरी नहीं था कि थर्ड लेवल की गवर्नमेंट होनी ही चाहिए, तो इसलिए उसको कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी। राजस्थान एक ऐसी पहले सरकार थी, स्टेट कह सकता हूँ, जिसने इसको फॉलो करा था। 3 tier ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पे बनाई गई थी, लेकिन कई जगहों पे उसको पावर्स नहीं थी, उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, उनका कोई वर्किंग एजेंडा नहीं हुआ करता था। लेकिन 1993 में इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट दिए गए और लॉस के अकॉर्डिंग पावर्स को डिवाइड करा गया थर्ड लेवल में। सबसे पहली बात, बेसिक आइडिया वाई डिसेंट्रलाइजेशन वॉज इंपॉर्टेंट, सॉल्विंग लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इशू एट द लोकल लेवल, एंड मोर ओवर people have better knowledge of problem in the locality, that means people better know about the problems at the local level. But I know the problem of my area and my house, so I have better knowledge how to solve it at the grassroots level. Better ideas on where to spend the money and how to manage things efficiently. I know where I have to spend, that means I know that we have to spend more money on the education sector, on the irrigation sector, etc. People participation in decision making. Let me tell you one thing. The maximum participation in the democracy takes place at the grassroots level, that is the local level. More than 13 lakh representatives are there, and the maximum majority of the women's participation takes place only at the local level election. And to realize one important principle of democracy, local government. This local government का जो idea है, this has been given by the Gandhi ji. This was the idea of Gandhi ji. That means the power should be given to the local people. They have the right to get the power, and they have the optimum potential to solve the problem at the local level. Now we will talk about what were the changes brought by this decentralization. When this decentralization took place in 1993, what were the changes that took place in the society? Most important, it is mandatory to hold regular elections to the local government. Now the elections to the local government, that is the third level of the government, is compulsory. It is compulsory. That means after a certain fixed period of time, the elections has to take place. More importantly, reservations of seat for SC, ST and OBCs, the scheduled caste, scheduled tribe and other backward caste. That means seats are reserved for the SC, STs and OBCs. More importantly, this is really very, very important. Only in the local government 1/3 seats are reserved for women's. And if you talk about the union government or the state government, they don't have fixed seats for women's. But in the local level, that means at the grassroots level, we have 1/3 seats reserved for the female. It is exclusively, and more importantly, that state election commission conducts elections. The state election commission is responsible. You know, in the country we have Election Commission of India, the independent body who has the authority to make to organize elections, to make all the management for the elections. So the state also have a state election commission which is responsible for organizing the elections at the local level. More importantly, the state government shares some power and revenue with the local bodies. That the state government are obliged to share some power with the local level, as well as to share the revenues, the money and the monetary and the fiscal policy as well as. इसी के साथ साथ एक इंडिपेंडेंट फाइनेंस कमीशन भी बनाया गया था, which will look after the financial policies of the local government.
ये चीज़ें, these were the important changes that were brought in the decentralization of India. इसके बाद में सबसे important चीज़ आती है कि किस तरीके सोसाइटी को डिवाइड करा गया है लोकल गवर्नमेंट के अंदर. सी वी हैव अर्बन एरियाज, वी हैव रूरल एरियाज. सो ऊपर जो सिस्टमेटिक डायग्राम है दैट इज़ फॉर द रूरल एरियाज, गाँव के लिए, और नीचे है अर्बन एरियाज में. सो रूरल एरियाज की बात करेंगे. सबसे पहले विलेज लेवल पर, ठीक है, इसको बोलते हैं पंचायती राज और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द रूरल एरियाज. सो एट द फर्स्ट लेवल वी हैव विलेज लेवल. विलेज के अंदर दो चीज़ होती है, एक होती है ग्राम पंचायत, एक होती है ग्राम सभा. ग्राम पंचायत के अंदर जो ग्रुप ऑफ विलेज पंचायत है दैट मीन्स वहाँ पे सरपंच होता है जिसको प्रेसिडेंट बोलते हैं, और पंच होते हैं दैट मीन्स 5 हेड्स होते हैं, और उनका एक जो हेड है उसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं, सरपंच कहते हैं. उसको हम ग्राम पंचायत कहते हैं. ग्राम पंचायत का वर्क होता है डे टू डे लोगों के लिए काम करना, एग्जीक्यूटिव की तरह काम करना, लेजिस्लेचर की तरह काम करना, जुडिशरी की तरह काम करना. साथ ही साथ इसके साथ होती है ग्राम सभा. गांव का जो भी इंसान 18 ईयर्स से अबव होता है वो ऑटोमेटिकली मेंबर हो जाता है ग्राम सभा का. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ग्राम सभा? द फंक्शन ऑफ द ग्राम सभा इज टू लुक आफ्टर द डे टू डे वर्किंग ऑफ द ग्राम पंचायत, and it has the responsibility to meet 2 or 3 times annually and pass the budgets for the gram panchayat, as well as it acts as a watchdog and criticize if the gram panchayat is not according to the will of the people and according to the laws prescribed by the constitution or given by the state authority. इसके बाद बहुत सारे क्लस्टर्स, अगर गांव के क्लस्टर्स बन जाते हैं, बहुत सारे गांव मिलकर बनाते हैं ब्लॉक लेवल, जिसको ब्लॉक, तालुका या मंडल भी कहा जाता है. तालुका भी बोला जाता है और मंडल लेवल भी बोला जाता है इसको. अब यहाँ पर इसका जो हेड होता है ब्लॉक लेवल का, उसको बोलते हैं ब्लॉक प्रमुख. ठीक है, जो ब्लॉक पंचायत होती है इसको बोलते हैं ब्लॉक प्रमुख. इसके साथ एक गवर्नमेंट का ऑफिशियल भी वर्क करता है, इसको बीडीओ कहते हैं. ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर. तो ब्लॉक प्रमुख की बेसिकली द हेड ऑफ द क्लस्टर्स ऑफ विलेजेस. इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है. डिस्ट्रिक्ट लेवल को जिला परिषद बोलते हैं. इस जिला परिषद के अंदर वी हैव इलेक्टेड मेंबर्स ऑल्सो. वी हैव मेंबर्स फ्रॉम द लोकसभा एज वेल एज मेंबर्स फ्रॉम द एमएलए, दैट इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेटिव, एंड द चेयरपर्सन इज नोन एज द जिला चेयरपर्सन. इसके साथ साथ डीएम, एसएसपी एंड अदर ऑफिशियल्स ऑफ द गवर्नमेंट दे आल्सो वर्क. इफ वी टॉक अबाउट अर्बन एरियाज, शहरों के अंदर बात करते हैं. ठीक है, तो शहरों में छोटे शहर और बड़े शहरों की बात करते हैं. बड़े शहरों को बोलते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, छोटे शहरों को बोलते हैं म्युनिसिपैलिटीज़ जो टाउन्स में होती हैं. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो बड़े शहर होते हैं उनको हेड करता है मेयर. जैसे गाजियाबाद की बात करोगे तो इट्स अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. यहाँ पे जो मेयर हैं श्रीमती आशा शर्मा, शी इज राइट नाउ द मेयर ऑफ द गाजियाबाद एग्जाम्पल. टाउन्स के अंदर जो छोटे शहर होते हैं उनको म्युनिसिपैलिटीज़ बोलते हैं. वहाँ पे म्युनिसिपल चेयरपर्सन हेड होता है, म्युनिसिपल चेयरपर्सन. तो ये सिस्टमेटिक डायग्राम है. दिस शोज हाउ द पावर्स आर बीन डिवाइडेड अमंग द urban areas and rural areas according to the decentralization of 1993. So इसके साथ साथ for extra knowledge I have written some of the parliaments around the countries. different countries के जो parliament है उनके नाम. इसराइल के parliament का नाम है नेसेट. वहाँ पे मेजर 2 पार्टीज होती हैं, जैसे आप ब्लैक एंड वाइट या ब्लू इंक की बात करेंगे. जर्मनी में बैंडस्टैंग बोलते हैं, जापान में डीट बोलते हैं, नॉर्वे में स्टॉटिंग, नेपाल में राष्ट्रीय पंचायत, पाकिस्तान नेशनल असेंबली, रशिया डूमा, यूएसए कांग्रेस. सी कांग्रेस इज नॉट द नेम ऑफ द पार्टी. कांग्रेस का मतलब सिंपल होता है, इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ द पीपल एंड द एसोसिएशन, दैट इज कांग्रेस. साउथ अफ्रीका पार्लियामेंट, स्विट्जरलैंड फेडरल असेंबली. सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज. एंड इंडिया, यू नो बेसिकली अबाउट इंडिया दैट वी हैव द पार्लियामेंट, दैट इज संसद भवन इटसेल्फ. ठीक है, सो this was all about the chapter. I hope you have understood very well. If you have any doubts, query, do let me tell in the comment section, and like, subscribe, share AS Talks. Thank you so much. There's a beautiful quotation I have written for you. Understand it well. God bless you. Take care. Stay safe.